So good morning students. So this is the third video on optical mineralogy. So in the last two videos you must have watched, we have already discussed what is light, what are different type of substances or minerals, how light behaves in these substances with these substances. So you must be remembering that the minerals may be divided into two categories. One is isotropic and second is anisotropic. So isotropic minerals are those minerals which crystallize in isometric system and the velocity of light is uniform in all the directions. So such type of minerals or such type of substances are known as isotropic mineral. Now today we will discuss anisotropic mineral and what is negative and positive isotropic minerals. So on the other hand, anisotropic minerals are those minerals in which the velocity of light is different in different directions. Okay. So all the anisotropic minerals have more than one refractive indexes, whereas in isotropic minerals there is a single refractive index. तो देखो ये anisotropic minerals. Now this anisotropic mineral can be divided into two categories. दो टाइप से बांटते हैं, must be remembering. एक कहलाता है यूनिएक्सियल मिनरल और दूसरा कहलाता है बाईएक्सियल मिनरल. तो अनाइसोट्रॉपिक मिनरल्स के दो कैटेगरी हुए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस. So one is called uniaxial mineral and the other is called biaxial mineral. So in uniaxial mineral the number of optic axis is one optic axis only. One optic axis. Now the question is, what is optic axis? So optic axis is the direction along which there is no double refraction. Okay. So anisotropic minerals, as I have just told, that it possesses more than one refractive index. That means it is doubly refracting substances. तो यूनिएक्सियल मिनरल में क्या होगा कि एक ऑप्टिक एक्सिस होगा, मतलब उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन होगा जिसमें अगर लाइट उसके थ्रू अगर एंटर करता है तो इट विल सफर सिंगल रिफ्रैक्शन, उसमें डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है. और इसको छोड़ करके किसी भी दूसरे डायरेक्शंस में अगर लाइट एंटर करता है लाइक दिस और लाइक दिस तो क्या होगा, इट विल बी डबली रिफ्रैक्टेड. तो यूनिएक्सियल मिनरल में आपको याद ये रखना है कि इसमें सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सिस होता है और दो डायरेक्शंस होते हैं वाइब्रेशन के. एक होगा ओ रे का, दैट इज ऑर्डिनरी रे, और दूसरा जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे. तो अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ऑप्टिक साइन ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल, ऑप्टिक साइन ऑफ बाईएक्सियल मिनरल. सो फर्स्ट you must know what is negative and positive uniaxial minerals. So uniaxial minerals may be positive or it may be negative. What is the criteria? The criteria है कि अगर velocity O ray का greater हो E ray से, मिनरल में अगर O ray की velocity E ray से अधिक है तो मिनरल को हम पॉजिटिव कहेंगे. वेरी सिंपल. If the velocity of O ray is greater than that of E ray, the mineral is said to be positive. And if we talk in terms of its refractive indices, तो ओमेगा याद होगा, ओमेगा किसके corresponding refractive index है? It is corresponding to O ray. And this is epsilon, this is refractive indices corresponding to E ray. तो चूंकि वेलोसिटी के साथ इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, सो वी कैन राइट इन द केस ऑफ पॉजिटिव यूनिएक्सियल मिनरल ओमेगा विल बी लेस देन एप्सिलॉन. फॉलो माय पॉइंट. नाउ नेगेटिव मिनरल जस्ट उल्टा, इसमें वेलोसिटी ई रे का वेलोसिटी अधिक होगा
ओ रे से, और अगर हम लोग इसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात करेंगे देन ओमेगा विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब आइए थोड़ा सा, अगर हम पॉजिटिव यूनिएक्सियल मिनरल का वेव फ्रंट अगर कंस्ट्रक्ट करें तो कैसा होगा, और अगर निगेटिव मिनरल का अगर हम लोग वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करें तो वो कैसा होगा, इसको समझे हम लोग। सो सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, दैट मीन्स इफ लाइट ट्रेवल्स अलोंग दिस लाइन इट विल नॉट बी डबली रिफ्रैक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की वेलोसिटी ओ रे का और ई रे का ये दोनों बराबर होगा। यू सी, ये जो सर्कल है दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ ओ रे, और उसके अंदर ये जो इलिप्स दिखाया हुआ है दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ ई रे। सो इन द केस ऑफ uniaxial positive mineral, velocity of O ray is greater. That means if we see the velocity along perpendicular to the optic axis, then what will happen? Velocity, since the velocity of O ray is more, so it will travel a greater distance. जैसे मान लिया जाए कि this is the source of illumination, यही लाइट यही से ओरिजिनेट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर t सेकेंड में मान लीजिए t सेकेंड में जो O ray है परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिक एक्सिस, उसके ठीक परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में है इट विल ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, वेयर एज ये जो है ई रे इट विल लैग बिहाइंड। तो अब इसका कैसा बन गया, ये एक सर्कल बन गया और सर्कल के अंदर एक इलिप्स बन गया। इन दोनों ये इस डायरेक्शन में ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन में द वेलोसिटी ऑफ ओ रे एंड ई रे विल बी द सेम because there is no double refraction. So very simple, if we construct wave front of uniaxial positive mineral it will be like this, that means a circle और उसके अंदर क्या होगा, एक ellipse होगा। So this is very clear। और just reverse इसमें होगा, if the mineral is negative what will happen, this is the direction of sorry this is not the direction, this is the direction of optic axis। Here we have kept the optic axis horizontal optic axis। इसको हम उल्टा भी ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिक एक्सिस को आप ऐसे इसको ऐसे भी चढ़ा भी कर सकते हैं। सो जस्ट सी दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस और ये ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। बेटर वी कैन कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। Like this. So this is the circle within the ellipse. So this is O ray, wave front of O ray, and this is wave front of E ray. ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन एक ही तरह का दिखाइए। This is the optic axis direction. This is optic axis. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि the velocity of E ray is greater than that of O ray. So the mineral will be negative। और ये तो आपको मैंने बताया ही कि ओमेगा इसमें अधिक होगा एप्सिलॉन से, तो इसका वेव फ्रंट इस तरह का बनेगा, इस तरह का। ऐसा भी बनाना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ओके, अब बाई एक्सियल की बात अगर हम लोग करें तो बाई एक्सियल में आपको याद होगा बाई एक्सियल मिनरल्स हैव टू ऑप्टिक एक्सिस लाइक दिस। So this is one optic axis, this is another optic axis, means light traveling through these two lines will not suffer double refraction, okay? And vibration direction, there are three vibration direction, x, y, z। तो biaxial mineral में जो negative और positive का criteria है it is a bit different। कब positive का लाता है और कब negative का लाता है, बहुत सिंपल सा है कि अगर स्लोवेस्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन, मान लीजिए कि ये z है, दिस इज z, दिस इज x, ये x, ये z का वाइब्रेशन डायरेक्शन है, ये x का है और इसके ठीक परपेंडिकुलर सपोज दिस इज y, ये तीन वाइब्रेशन डायरेक्शन है। और याद होगा वेलोसिटी ऑफ x along x इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी ऑफ
light along z is minimum and along y it is of intermediate value. तो यानी कि जो x वाइब्रेशन डायरेक्शन है that is the fastest vibration direction, z is the slowest vibration direction and y is no doubt intermediate between the two. तो बाई एक्सियल के केस में पॉजिटिव मिनरल्स किसको कहते हैं? पॉजिटिव मिनरल कहते हैं कि if the slowest vibration direction that is z, if it becomes acute bisectrix, तो जैसे मान लिया जाए कि ये दो ऑप्टिक एक्सिस है, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज नोन एज ऑप्टिक एक्सियल प्लेन. तो ये जो एक्यूट एंगल है इसको हम लोग ऑप्टिक एक्सियल प्लेन कहते हैं. इसको हमने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से उसका जो ऑप्टिक इंडिकेट्रिक्स था उसके माध्यम से मैंने आपको समझाया था. तो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं. तो ये दो ऑप्टिक एक्सिस है और ये जो एंगल है एक्यूट एंगल दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सियल एंगल. तो अगर ये जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन इसको बाइसेक्ट करता है तो मिनरल विल बी कॉल्ड पॉजिटिव. और ठीक उल्टा अगर है ये एक्स का डायरेक्शन है, अब ये ऐसे हो लाइक दिस, ये हो लाइक दिस, ये दो ऑप्टिक एक्सिस बाई एक्सियल मिनरल में इस तरह का हो तो एक्यूट एंगल अब इधर बन रहा है. तो ये बट नेचुरल है कि ये एक्स जो है ये इसका बाइसेक्टर होगा. सो दिस इज द क्राइटेरिया. इफ द slowest vibration direction that is z becomes acute bisectrix, that is z bisects the optic axial angle, then the mineral will be said to be positive. और ठीक उल्टा है, उल्टा मीन्स कि अगर x जो है ये acute bisectrix हो जाए, ऑप्टिक एक्सियल एंगल जो acute एंगल है उसको अगर x bisect करे then the mineral will be negative. But there is no possibility at all that y should be bisector because y is always perpendicular to the optic axial plane. तो optic axial plane जो है optic axial plane शॉर्ट में OAP. तो इस optic axial plane में there are two vibration direction. इसमें it contains x and z. तो optic axial plane is a plane in which fastest and slowest vibration direction lie and y is perpendicular to the optic axial plane. So we will discuss it later on while discussing this method of determination of biaxial mineral, positive negative mineral. So, so this optical character, optic sign, whether the mineral is negative or mineral is positive, whether it is uniaxial or it is biaxial, इसका main use क्या है? Just for identification. It is one of the important optical properties. तो mineral negative है या positive है, it can be determined in the laboratory. Very simple test. So, what are the methods? We will discuss the methods of optic sign determination of uniaxial mineral today. So, this is the methods of determination of optic sign of uniaxial mineral. So, for optic sign determination, it is always required to observe the mineral, especially oriented section. So, basal section of mineral, this is basal section. Basal section of uniaxial mineral तो व्हाट इज बेसल सेक्शन? बेसल सेक्शन बहुत सिंपल सा है कि बेसल सेक्शन इज दैट सेक्शन which is cut perpendicular to C crystallographic axis. So this is basal section. Suppose this is the section and if it is cut perpendicular to the C crystallographic axis, and you must know in uniaxial mineral this C crystallographic axis is always parallel to optic axis. So this section is also perpendicular to the optic axis also.
So if we observe the basal section of uniaxial mineral, so what will happen? And this basal section of uniaxial mineral, it is observed under convergent polarized light. Convergent polarized light. So there is a provision in the microscope just below the stage that there is a condenser. So if we use the condenser, then what will happen कि जो light है parallel नहीं हो करके ये cone of light enter करेगा. You see here, this is the basal section of a mineral, and this is the C axis which is parallel to the optic axis. So this is the basal section, and if cone of light enters, देखो ये पैरेलल लाइट नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 रे हमने दिखाया हुआ है. ए बी इसकी नोमेनक्लेचर हमने यहाँ किया हुआ है. उसी तरह से यहाँ भी ए बी लिख दीजिए, सेम है, इन द फॉर्म ऑफ कोन है ना. तो इसमें इतने तरह रेज इसमें एंटर कर रहे हैं. सो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर कन्वर्जिंग. तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इफ वी यूज कंडेंसर. Condenser is present just below the stage. Rather, it is seen under conoscopic arrangement. So, in conoscopic arrangement, what happens? We use condenser lens. We also use analyzer. ऊपर में एनालाइजर होता है, आपको याद होगा. जस्ट नीचे जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर एक एनालाइजर है, नीचे तो पोलराइजर होता ही है, आपको पता ही है. तो एनालाइजर भी हमको यूज करना है, मतलब कि जो मिनरल्स को हम जो देख रहे हैं अंडर क्रॉस डिकोल पोजीशन में देख रहे हैं. बट कंडेंसर इज ऑलवेज यूज्ड. और एक और लेंस है दैट इज कॉल्ड बर्ट्रैंड लेंस. तो बर्ट्रैंड लेंस का पोजीशन अगर यहाँ पर सपोज ये है, एनालाइजर है, तो बर्ट्रैंड लेंस इसके ठीक ऊपर होता है. तो बर्ट्रैंड लेंस भी यूज किया जाता है. तो और ये अंडर हाई रेजोल्यूशन, हाई मैग्निफिकेशन और हाई रेजोल्यूशन. तो ये सेटिंग अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में कर लें तो इसको कहेंगे हम लोग कोनोस्कोपिक सेटिंग. तो अंडर कोनोस्कोपिक सेटिंग वी कैन ऑब्जर्व ए स्पेशल टाइप ऑफ फिगर दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस फिगर. दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फिगर. तो टिपिकल जो इंटरफेरेंस फिगर है, इफ द सेक्शन इज एग्जैक्टली बेसल सेक्शन, दैट मीन्स C or optic axis is exactly perpendicular to the section, and under this setting we will get this type of figure which is known as interference figure. So this interference figure consists of this black brush or this black cross as well as certain rings which is known as concentric rings. और ये जो ब्लैक क्रॉस है इसको कहते हैं हम लोग आइसोगायर. तो ये इंटरफेरेंस फिगर है यूनिएक्सियल मिनरल का, जिसमें कि एक क्रॉस है लाइक दिस, ब्लैक क्रॉस और डार्क क्रॉस और डार्क ब्रुश, एंड जस्ट अबाउट द सेंटर देयर आर सर्टेन रिंग्स which is known as concentric rings. But how they are developed? So we can understand here. ये कैसे बनता है? पहले जो formation of these concentric rings है, try to understand. I will make you understand कैसे ये develop होता है. तो देखो यहाँ पर पहले जरा सा ध्यान दो कि this is one optic axis which is parallel to C. तो if light enters along this one, it will suffer no double refraction. इसमें कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो डबल रिफ्रैक्शन. लेकिन और जो दूसरे रेज हैं विच आर ऑब्लिक, ए बी, इधर ए बी है, तो सिंस दे आर नॉट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, सो दे विल सफर डबल रिफ्रैक्शन. अब जैसे मान लो, देखिए ये ए है, रे ए. So this ray A has been split into two. ये देखिए O है यहाँ और ये E है. तो रे A का स्प्लिटिंग हुआ है दो में,
one is O and second is E. उसी तरह से ray B has also been split into two, O ray and E ray. वही चीज इधर भी है सिमिलर, और दूसरे रेज भी हो सकते हैं ऑब्लिक, दे विल सिमिलरली डबली रिफ्रैक्टेड. तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी. क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक रे का वो ई रे और बगल वाले का नेबरिंग दूसरा जो रे है उसका ई, उनका जो पॉइंट ऑफ इमर्जेंस है ये सेम हो, जैसा इस केस में हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? E of A and O of B. यहां ध्यान दीजिए आप, O और E दोनों का जो पॉइंट ऑफ इमर्जेंस है इट इज द सेम. O किसका है? O इसका है, B का है, और A का क्या है? E है. मतलब A का E और B का O, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इमर्जेंस सेम है. पॉइंट ऑफ इमर्जेंस is the same while leaving the section. Now this condition is dependent upon two factors. One is amount of double refraction, that is birefringence. जो amount of double refraction है इसके लिए टर्म है birefringence. तो birefringence पर डिपेंड करेगा कि O ray और E ray का कितना स्प्लिटिंग हो रहा है. What is the amount of double refraction? दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मिनरल के थिकनेस पर. मान लीजिए कि ये मिनरल अगर इतना थिक नहीं होता, हाफ कर देते हम लोग, तो बट नेचुरल है कि जो पॉइंट ऑफ इमर्जेंस O और E का जो नेबरिंग रेज का है दैट विल बी डिफरेंट. तो कंडीशन इज कि एक रे का E और दूसरे के जस्ट जो नेबरिंग रे है उसका O, ये अगर एक ही पॉइंट ऑफ इमर्जेंस हो, then what will happen? Darkness will appear if it is observed in monochromatic light. तो वही चीज यहां पर है. तो ये सब जो आप रिंग्स देख रहे हो, these are the points where O and E of the neighboring rays are the same, emergence is the same. So it will be in the form of this ring because it is conical you can say ray which is entering the mineral. तो इस तरह से ये आपका डेवलप होगा. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जो है तो आपको इस तरह का मिले. द कंसेंट्रिक रिंग्स में समटाइम्स बी एब्सेंट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दिस वन. आपको जस्ट बताएं कि कैसे होता है, तो ये एब्सेंट भी हो सकता है. दूसरा ये जो है आप देख रहे हो एनालाइजर और पोलराइजर का जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर. तो along this there is a black cross जिसको आइसोगैर मैंने कह रहा हूं आपको. So this is आइसोगैर, these are two आइसोगैर्स. तो ये कैसे डेवलप करता है? वेरी सिंपल, कि ये तो लाइट, ये इसके थ्रू जो ऑप्टिक एक्सिस है इसके थ्रू जो लाइट होगा इट विल सफर नो डबल रिफ्रैक्शन, है ना. ओ रे और ई रे का जो है एक ही मतलब वेलोसिटी होगा. So at the center, blackness will result because light is traveling through optic axis, and in this direction and in this direction, these are the directions of vibration of polarizer as well as analyzer. We are using analyzer. तो एनालाइजर और पोलराइजर दोनों हम चूंकि यूज कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो मिनरल का एक वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो कोइंसाइड कर रहा है पोलराइजर से, और इस डायरेक्शन में जो दूसरा जो है वाइब्रेशन डायरेक्शन वो एनालाइजर से कर रहा है. दैट इज व्हाई ये ब्लैक क्रॉस बन रहा है. और ये ब्लैक क्रॉस टिपिकली थिन होता है एट द सेंटर एंड इट इज ब्रॉडेंड एज वी गो टुवर्ड्स द पेरिफेरी. सो दिस इज द टिपिकल इंटरफेरेंस फिगर. तो अब इस इंटरफेरेंस फिगर को हम लोग यूज करते हैं इन द साइन डिटर्मिनेशन. प्रेजेंट है अगर रिंग्स तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी प्रेजेंट है अगेन इट कैन बी यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिक साइन ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल. सो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिक साइन, ये था ना डस्टर,
Anyway, so so there are three types of accessory plate. So there are three types of accessory plates which are used for the determination of optic sign. So optic accessory plate, optical accessory plates, accessory, ऑप्टिकल एक्सेसरी प्लेट्स. तो एक कहलाता है माइका प्लेट, माइका प्लेट. सेकंड वन इज जिप्सम प्लेट. जिप्सम प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिव tint, sensitive tint, and third one is called quartz vase. So these three types of accessory plates are used in the determination of optic sign after obtaining this figure. Okay, तो अब कैसे करते हैं इसको देखिए आप. तो first of all you must understand the vibration direction of O and E ray in the mineral. जैसे इसको देखिए, ये जो आपका टिपिकल इंटरफेरेंस फिगर है, तो ये चूंकि इमर्जेंस, लाइट का इमर्जेंस कैसा है, बिल्कुल सर्कुलर है. तो व्हाट विल बी द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ओ रे एंड ई रे. यूनिएक्सियल मिनरल में दो वाइब्रेशन डायरेक्शन होते हैं, ओ रे का एंड ई रे का. ऑप्टिक एक्सिस एक ही होता है. तो वी मस्ट नो दैट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, it will define the vibration direction of O ray. So this arrow, ब्लैक में जो एरो हमने दिखाया है, ये कौन सा है, वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ O ray है. और उसके ठीक परपेंडिकुलर जो रेड में हमने दिखाया है, that is the vibration direction of E ray. So you must remember that O ray is always tangential to the arc, whereas E ray is radial to the arc, and if we extend it will pass through the center. तो ये इसका मतलब है कि ये चेंज करता है. जैसे यहाँ पर ओ रे का वाइब्रेशन डायरेक्शन लाइक दिस, ये है वाइब्रेशन डायरेक्शन, टेंजेंट ले रहे हैं तो. लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग ले लें, ठीक 90 डिग्री चेंज हो रहा है, तो अब ये ऐसे हो गया, अभी ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, देयर इज चेंज ऑफ 90 डिग्री. यहाँ पर अगर हम लोग लें तो क्या होगा, 45 डिग्री का चेंज हो जाएगा. इट विल बी लाइक दिस, ओ रे विल बी लाइक दिस, ई रे विल बी लाइक दिस. तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर वी कैन फिक्स द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ओ रे एंड ई रे. फॉलो. तो नाउ कम, अब हम लोग, अगर ये आपका कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, हमने आपको जस्ट कहा कि द रिंग्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कि ओ और ई जो है नेबरिंग का ओ और ई एक साथ निकल रहा है कि नहीं. तो सपोज we get this type of figure, this figure, then use of mica plate is most important. तो mica plate होता कैसा है, आपको मैंने तीन तरह का प्लेट बताया. तो इन तीनों जो प्लेट है बहुत सिंपल सा है. दिस इज अ वेरी सिंपल डिवाइस. देखो, ये एक सर्कुलर ओपनिंग है, ये एक मेटल का फ्रेम है. दिस इज मेटल, मेटालिक फ्रेम. इस मेटालिक फ्रेम में एक सर्कुलर ओपनिंग है, और इस सर्कुलर ओपनिंग में माइका, स्पेशली जो माइका है, कौन सा है, ये माइका है मस्को व्हाइट. सो द थीन फिल्म ऑफ मस्को व्हाइट इज माउंटेड, और उसको इस तरह से माउंट किया जाता है कि इसका जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो नोन हो, और बल्कि ये मार्क किया हुआ होता है ऑन द प्लेट. तो ये जो मेटालिक फ्रेम है, इसके ऊपर मार्क किया हुआ होता है उसका जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है. तो ये देखो, ऐसे मार्क किया हुआ है एरो से, और यहाँ लिखा हुआ है Z. तो ये जरूरी नहीं है कि Z हमेशा ऐसे ही हो, इट डिपेंड्स अपॉन मेक टू मेक. कोई कंपनी ने Z को ऐसे रखा है, कोई दूसरी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो X को ऐसे रख सकता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर में, स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन इज केप्ट पैरेलल टू द माइका प्लेट, और ये इस तरह से मार्क किया हुआ होता है और लिखा हुआ भी होता है. सो दिस इज जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ माइका प्लेट.
दूसरी चीज है कि ये जो माइका जो यहाँ पर हमने जो मस्कोवाइट हमने लिया है, इसकी जो थिकनेस है, दैट थिकनेस इज ऑल्सो मेंटेन्ड। तो थिकनेस इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि जो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, दो रे जो निकलेगा, ओ रे एंड ई रे, तो उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है 1/4 लैम्डा का होगा, 1/4 लैम्डा। दैट इज वाई इट इज written as 1/4 lambda m. 1/4 lambda means this is the phase difference between O and E ray and m stands for mica plate. तो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, इसको देखिए। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि मिनरल इज पॉजिटिव। अगर मिनरल पॉजिटिव है तो व्हाट इफेक्ट विल बी देयर, और उसका ठीक उल्टा इफेक्ट होगा इफ द मिनरल इज नेगेटिव। तो सपोज द मिनरल इज पॉजिटिव, तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पॉजिटिव मिनरल यूनिएक्सियल का किसको कहते हैं, वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ओ रे वो फास्ट होता है, वेलोसिटी अलोंग ओ विल बी मोर। तो अगर मिनरल ये पॉजिटिव है, और ये भी हमने अभी जस्ट बात किया कि ओ रे का वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में ओ रे ऐसे होगा और ई रे ऐसे होगा, और जस्ट दूसरे जो क्वाड्रेंट हैं इसमें ऐसे होगा, O ray will be like this, E ray will be like this. So इसको quadrant wise, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third and this is fourth quadrant. तो ये 4 quadrant की हम लोग बात करें, और 2 and 4 जो quadrant है like this, यहाँ जो ये हमने broken line में दिखाया, this is the direction of slot, accessory slot है ये। तो माइक्रोस्कोप में जो ट्यूब है उसमें एक स्लॉट बना हुआ है एंड इट इज जस्ट 45 डिग्री पोजीशन पे है। सो 45 डिग्री बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। ये पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन है, दिस इज पोलराइजर एंड दिस इज एनालाइजर। सो द स्लॉट इज जस्ट केप्ट 45 डिग्री पोजीशन। ओके, तो अब देखिए अगर मिनरल पॉजिटिव है तो व्हाट इफेक्ट विल बी देयर, क्या इफेक्ट होगा। अब हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, माइका प्लेट को इंसर्ट कर रहे हैं। माइका प्लेट का ये जो डायरेक्शन है ये स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन है। तो अगर मिनरल पॉजिटिव है इसका मतलब ये फास्ट है और ये स्लो है। तो इन दो क्वाड्रेंट्स में, इन 2 and 4, सिमिलर नेचर ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड द माइका प्लेट विल कोइंसाइड, है ना। मिनरल पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये स्लो है, ये फास्ट है, और ये माइका प्लेट का स्लो है और फास्ट ऐसे होगा। तो इफ वी इंसर्ट दिस माइका प्लेट अलोंग दिस लाइन, सो व्हाट विल हैपन, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे और दूसरे क्वाड्रेंट में सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिनरल का और प्लेट का ये कोइंसाइड करेगा। तो अगर सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन अगर कोइंसाइड करेगा तो इफेक्ट होगा एज इफ द बाइरेफ्रिंजेंस हैज इंक्रीज्ड। बाइरेफ्रिंजेंस इंक्रीज हो गया, या यू कैन से द इंटरफेरेंस कलर हैज इंक्रीज, उसका ऑर्डर बढ़ेगा। और ये जो है बाइरेफ्रिंजेंस इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट होगा कि ये जो रिंग्स था, ये देखो ये रिंग है, तो ये जो रिंग है ये डॉटेड में हमने ओरिजिनल पोजीशन रिंग्स का दिखाया है। तो जिन दो क्वाड्रेंट्स में सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिलेगा उसमें क्या होगा, rings will move towards the center. Okay, यानी कि there will be tendency of increase in number of concentric rings, जिसमें ज्यादा मतलब जिसमें by reference increase होने का tendency है। That means in quadrant 2 and 4 ये rings चूंकि इधर घसक रहा है, so एक possibility है कि एक आध रिंग और बढ़ जाए। So number of tendency यही होगा कि जो नंबर ऑफ रिंग्स है, कंसेंट्रिक रिंग्स, वो बढ़ जाए। किन क्वाड्रेंट में, किन दो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, वेयर द सिमिलर नेचर ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल एंड माइका प्लेट इज कोइंसिडेंट। और देखो इन दोनों में अपोजिट इफेक्ट होगा, 1 and 3rd, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, अनलाइक नेचर ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन मिल रहा है। दिस इज स्लो डायरेक्शन ऑफ माइका प्लेट, और चूंकि मिनरल पॉजिटिव हम लोग मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ये फास्ट है, ये स्लो है। तो क्या हो जा रहा है, स्लो के फास्ट में
अनलाइक नेचर का मिल गया, ये स्लो है ना इसका, और ये इसका स्लो है, तो अनलाइक नेचर का स्लो ऐसे, इसका स्लो ऐसे, इसका मतलब इसका फास्ट इसके स्लो से मिला। तो अनलाइक नेचर ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल एंड माइका प्लेट विल बी कोइंसिडेंट इन क्वाड्रेंट 1 and 3। तो 1 and 3 में चूंकि अनलाइक नेचर ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन मिल रहा है, तो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा एज इफ द बाइरेफ्रिंजेंस हैज डिक्रीज्ड। तो बाइरेफ्रिंजेंस डिक्रीज होने का आपको क्या इफेक्ट मिलेगा कि जो रिंग्स है अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करेगा एंड शिफ्टिंग विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये इफेक्ट आप इसको नोट कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी चीज है, इफ यू डू एक्सपेरिमेंट इन द लैब, तो ये जो मूवमेंट है रिंग का उसको पहचानने के लिए यू जस्ट ऑब्जर्व दीज 2 डॉट्स। तो ये 2 डॉट वेरी नियर टू द सेंटर ये अपीयर होता है, और ये उस क्वाड्रेंट्स में अपीयर होगा जिसमें रिंग्स अवे मूव किया है फ्रॉम द सेंटर। सो दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजिली एंड यू कैन नोट द मूवमेंट वेदर द रिंग्स हैव moved away from the center or towards the center. So this is the case of effect of mica plate on positive mineral. अगर negative mineral है, if the mineral is negative, तो ठीक उल्टा इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा कि इस क्वाड्रेंट में जहां इसमें अभी इधर मूव किया था, उल्टा मूव करेगा, it will move away from the center। और रिंग्स जो है इसमें इन दोनों क्वाड्रेंट 1 and 3 में क्या होगा, it will move towards the center. So by observing the movement of these concentric rings, कि किन 2 अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सेंटर की तरफ जा रहा है और किन 2 अपोजिट क्वाड्रेंट्स में अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है, we can determine the optic sign। तो ये आपको मैंने पॉजिटिव के लिए बता दिया, निगेटिव होगा तो ठीक उल्टा होगा। So this is the use of mica plate। और माइका प्लेट का जो यूज है तब हम लोग जनरली करते हैं जब रिंग्स क्लियरली डेवलप हुआ हो। लेकिन कोई ऐसा इंटरफेरेंस फिगर आपको मिले जिसमें रिंग्स ऑलमोस्ट नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, तब हम सेंसिटिव टिंट या जो जिप्सम प्लेट है, इसको मैंने बताया कि सेंसिटिव टिंट भी बोलते हैं। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ मस्कोवाइट हम जिप्सम यहाँ पर माउंट किए हैं, और इसमें भी उसी तरह से इसका जो स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो मार्क्ड है। तो अब अगर जिप्सम प्लेट हम यूज करें तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि जो जिप्सम है, जिप्सम का जो इंटरफेरेंस कलर है इट इज रेड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, एंड ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर इज वेरी सेंसिटिव कलर इन द सेंस कि अगर ऑर्डर बढ़ेगा तो रेड से बिल्कुल क्वालिटेटिव चेंज हो जाएगा। रेड के बाद क्या होता है, ब्लू होता है, सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट होता है। और फर्स्ट ऑर्डर का ही अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, लोअर फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम लोग जाएं तो रेड के ठीक पहले येलो होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेंसिटिव टिंट, बिकॉज द इंटरफेरेंस कलर ऑफ दिस जिप्सम प्लेट इज वेरी सेंसिटिव। थिकनेस इस तरह मेंटेन किया गया है कि उसका जो इंटरफेरेंस का कलर का जो ऑर्डर है वो कैसा हो, फर्स्ट रेड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो अब देखिए, अगर मिनरल पॉजिटिव है और हम जिप्सम प्लेट को यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर इन 2 क्वाड्रेंट्स में, फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिल रहा है। तो सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिलने से स्ट्रेंथन होगा, द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर विल चेंज, बल्कि कहिए कि बढ़ जाएगा। तो रेड के बाद आपको मैंने क्या बताया, सेकंड ऑर्डर का ब्लू आता है। तो अगर इसके इंट्रोड्यूस करने से अगर यहाँ पर सेंटर के पास अगर ब्लू स्पॉट आने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और उल्टा इफेक्ट होगा, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में व्हाट विल हैपन, यहाँ येलो होगा। तो येलो इंटरफेरेंस फिगर का मतलब क्या हो रहा है, येलो इंटरफेरेंस कलर का मतलब क्या हो रहा है कि देयर इज फॉल इन द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर। तो रेड आपको मैंने बताया कि रेड का जो कलर है, ये रेड है सपोज,
तो रेड में हाइयर ऑर्डर क्या हो रहा है, और रेड के बाद अगर हम जा रहे हैं तो ब्लू हो रहा है, और ये फॉल अगर हो रहा है तो इसके ठीक बगल में कौन सा है, येलो कलर है। तो बाई ऑब्जर्विंग कि किन दो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में ब्लू हो रहा है और किस दो अपोजिट क्वाड्रेंट में येलो हो रहा है, वी कैन से वेदर द मिनरल इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो जैसे अगर मिनरल पॉजिटिव है तो ब्लू कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ ब्लू होगा, और यहाँ येलो होगा। अगर ये निगेटिव होता है तो जस्ट अपोजिट इफेक्ट कैन बी सीन, यहाँ हमारा येलो हो जाता है और इन दोनों जगह पर ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से सेंसिटिव टिंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा जो यूज है क्वार्ट्ज वेज का, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है क्वार्ट्ज वेज का थोड़ा डिफरेंट है जिप्सम प्लेट और माइका प्लेट से। इसमें क्या करते थे हम लोग, जिप्सम और माइका का एक यूनिफॉर्म थिकनेस का प्लेट हम लोग यूज करते थे, जबकि यहाँ पर जो क्वार्ट्ज वेज है तो क्वार्ट्ज वेज में हम लोग वेज शेप कैसा होता है, मतलब ऐसा, लाइक दिस, एक एंड इसका थिन होगा और धीरे धीरे थिकनेस बढ़ेगा। सो दिस इज टिपिकल वेज शेप। तो वेज शेप क्वार्ट्ज इज माउंटेड हियर। ये इसका थिनर एंड है और ये दिस इज थिकर एंड, और इसमें अगेन स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन मार्क्ड होता है। क्वार्ट्ज चूंकि यूनिएक्सियल मिनरल है इसलिए XYZ नहीं लिख के यहाँ स्लो लिखा हुआ है, मतलब स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन। अब इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो कैसे होता है, तो इसको तरीका है, यूज करने का तरीका ये है, क्वार्ट्ज वेज को हम एक खास पोजीशन में नहीं देखते हैं, रदर इट इज बीइंग इंसर्टेड स्लोली एंड सीन द इफेक्ट। तो उसको धीरे धीरे पुश करते जाइए आप इन द एक्सेसरी स्लॉट एंड सी द इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें बहुत सिंपल सा है कि जिन दो क्वाड्रेंट्स में सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिनरल का और क्वार्ट्ज वेज का कोइंसाइड करेगा, इन दैट केस इन दैट टू क्वाड्रेंट्स द कलर्स अपीयर्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो पॉजिटिव के केस में क्या होगा कि चूंकि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में सिमिलर नेचर के वाइब्रेशन डायरेक्शंस मिल रहे हैं, तो आप जैसे जैसे क्वार्ट्ज वेज को पुश करिएगा अलोंग दिस डायरेक्शन इन दिस स्लॉट, तो जो कलर है इंटरफेरेंस कलर, ये आपको धीरे धीरे मूव करता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स द सेंटर, एंड अपोजिट इफेक्ट होगा इधर इन दोनों क्वाड्रेंट्स में। यहां से कलर क्या होगा, इट विल अपीयर मूविंग आउट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये इफेक्ट है देन तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो ठीक उल्टा इफेक्ट आएगा। इन दो क्वाड्रेंट्स में कलर जो है सो अवे मूव होता हुआ दिखेगा, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में अंदर आता हुआ दिखेगा, सेंटर की तरफ आता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिक साइन ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल यूजिंग माइका प्लेट, जिप्सम प्लेट एंड क्वार्ट्ज वेज। Now you must know what are important uniaxial positive minerals and uniaxial negative minerals. So I must write देखो कुछ minerals uniaxial positive, कुछ मिनरल्स यूनिएक्सियल पॉजिटिव इंपॉर्टेंट मिनरल हैं। इसमें जैसे क्वार्ट्ज हो सकता है, फर्स्ट वन इज क्वार्ट्ज। पहले तो यूनिएक्सियल मिनरल आपको मालूम होना चाहिए किस किस क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, तो इट क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में जितने भी मिनरल क्रिस्टलाइज करेंगे दे विल बी ऑल यूनिएक्सियल मिनरल, और उसी में फिर कुछ मिनरल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं। तो क्वार्ट्ज है, दूसरा जिरकॉन है, जिरकॉन, एंड तीसरा आप याद रखिए रूटाइल, रूटाइल। सो दीज थ्री मिनरल्स आर यूनिएक्सियल पॉजिटिव। क्वार्ट्ज हेक्सागोनल में क्रिस्टलाइज करता है, हेक्सागोनल। Zircon and rutile they crystallizes in tetragonal। तो ये आपका यूनिएक्सियल पॉजिटिव है। दो तीन यूनिएक्सियल निगेटिव मिनरल देखें हम लोग, यूनिएक्सियल निगेटिव।
तो इसमें एक कैल्साइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्साइट। कैल्साइट इज यूनिएक्सियल नेगेटिव। कैल्साइट किसमें क्रिस्टलाइज करता है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का है। इसके बाद बेरिल है, बेरिल, बेरिल भी हेक्सागोनल का ही है। बेरिल इज यूनिएक्सियल नेगेटिव। टूरमैलिन है तीसरा, टूरमैलिन, ये भी हेक्सागोनल। तो at least 3 minerals uniaxial positive, you must remember these are 3 uniaxial negative minerals. So this optic sign determination is a very simple process. We can determine optic sign whether the mineral is negative or positive in the laboratory. Only requirement is petrological microscope and accessory plates, and of course oriented section of thin section. So thank you students. So in the next video we will discuss the optic sign determination of biaxial mineral. Thank you very much.